So good morning to all of you. I hope all of you are very well and fine. So in the continuation of the webinar lecture series, the topic which are going to continue, that is the male reproductive system. In last part, we learn up to the development of the reproductive system, how it is developed. So in the continuation, I am going on. In the last slide, we learn development of the male reproductive system, how it is taken place. Now structural detail of the male reproductive system. This is the transverse view or lateral view of the male reproductive system. You can see here so many organs are present. So what is the form of the male reproductive system? First one is the testis, then duct system. Duct system consists of the epididymis, vas deferens and urethra, and then accessory gland. So what is the accessory gland? It consists of the prostate gland, seminal vesicle and bulbourethral gland, and then penis. So what is the main content we will learn here? यहाँ पर हम कौन कौन से कंटेंट को देखेंगे और उनके अंडरस्टैंडिंग समझेंगे. तो फर्स्ट वन इज टेस्टिस, देन स्क्रोटम, देन एपिडिडाइमिस, देन वास डिफरेंस, देन सेमिनल वेसिकल, देन ejaculatory duct, then prostate gland, then urethra, and last one is penis. You can see here, यहाँ पर इस पिक में सारे जो ऑर्गन्स है उनको रिप्रेजेंट किया गया है और हर एक ऑर्गन का शॉर्ट में फंक्शन भी बताया गया है. तो आप इसको ब्रीफली यहाँ पर समझ सकते हैं. हम एक एक ऑर्गन को इलाबोरेट करके समझेंगे आगे की स्लाइड्स में. You can see here, this is the testis, this is epididymis, this is the bulbourethral gland, और इसको हम काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं. This is the prostate gland, this is seminal vesicle, this is urinary bladder, this is vas deferens, this one is urethra, this is the erectile tissue of penis, जिसकी वजह से इरेक्शन होता है पेनिस में. This is whole penis, and this one is the glans penis. So this is the lateral view or side view of the male reproductive system. This is the rear view. जब हम पीछे की तरफ से देखेंगे बैक साइड से, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरफ से देखेंगे तो हमको कैसा व्यू दिखेगा. This is glans penis, this is testis, urethra. You can see here, this is the transverse section of the penis or cross section of the penis. Urethra, you can see here, erectile tissue of the penis, bulbourethral gland, prostate, seminal vesicle, vas deferens, ureter, and this is the urinary bladder. Okay, this is the rear view. For testis, what is the testis? This is the lateral view of the testis or sagittal view. It is the ovoid gland that are suspended in the scrotum. ये ओवल शेप की ग्लैंड होती है जो कि स्क्रोटम में सस्पेंडेड रहती है. अटैच टू द स्क्रोटल टिश्यू एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड. और ये किससे अटैच रहती है? स्पर्मेटिक कॉर्ड. यहाँ पर आपको दिख रही है, हाईलाइटेड है पार्ट. स्पर्मेटिक कॉर्ड से और स्क्रोटल टिश्यू से ये अटैच रहती है. कंसिस्ट ऑफ मेनी लोब्यूल. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसका क्रॉस सेक्शन में दिखाया गया. ये पार्ट जो है ये लोब्यूल्स है. इसमें 250 से लगभग 250 to 300 इन ईच टेस्टिस. 250 से 300 तक हर टेस्टिस में, क्योंकि एक पेयर होती है तो एक टेस्टिस की बात करें तो एक टेस्टिस में 250 से 300 लोब्यूल्स होते हैं. ईच लोब्यूल कंसिस्ट ऑफ द
seminiferous tubules. Okay, this is the coiled seminiferous tubules for spermatogenesis. Spermatogenesis means कि स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर ही होता है. Then interstitial cell of the leading, वो आपको मैं शो करूंगा, that secrete the testosterone. इसी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में सेल्स होती है जिसे हम इंटरस्टिशियल सेल ऑफ द लेडिक कहते हैं, और वो किसका फॉर्मेशन करती है? टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करती है. इनिविन बाय सर्टोली सेल, इसी में एक सर्टोली सेल भी प्रेजेंट होती है जो किसका फॉर्मेशन करती है? हार्मोन होता है इनिविन, उसका सिक्रेशन करती है. तो टेस्टिस का मेन काम क्या हो गया है? स्पर्मेटोजेनेसिस. हम यहाँ पर देखेंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस करना है, दैट मींस की फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, देन हार्मोन का सिक्रेशन करना. कौन कौन से हार्मोन रहेंगे? तो फर्स्ट वन इज द टेस्टोस्टेरोन एंड सेकंड वन इज द इनिविन. यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली, ये टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन है, ये लेटरल सेक्शन है, ये लेटरल व्यू हम देखेंगे. तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है कॉइल्ड फॉर्म में रहती है. इसको जब हम अनकॉइल्ड करते हैं या ओपन करेंगे इसको, तो हम यहाँ पर देखेंगे ये जो सेक्शन है अंदर वाला, जो ल्यूमेन है इसकी ल्यूमेन में क्या रहते हैं? प्रेजेंट स्पर्म प्रेजेंट रहते हैं. और इसकी जो वॉल है, यहाँ से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, यहाँ से फॉर्मेशन सेल का डिवाइडेशन होता है, और वो डिवाइड हो करके स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं और स्पर्म को इस ल्यूमेन में लीव कर दिया जाता है. आप इस डायग्राम में देखिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड द इंटरस्टिशियम. दिस इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ओके, ये जो पार्ट है ये पूरा ये यहाँ पर दिखाएगा, ये एक सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल का पार्ट है. ये ल्यूमेन है, बीच की खाली जगह है. ये जो खाली जगह दिख रही है आपको यहाँ पर, ये इसकी ल्यूमेन है. दिस इज द बेसल लेमिना. बेसल लेमिना जहाँ से कि सेल्स रहती है, वहां से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है. दिस इज द इंटरस्टिशियल सेल ऑफ द लेडिक. ये दिख रही होगी आपको. दिस इज द इंटरस्टिशियल सेल ऑफ द लेडिक. इससे टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होता है. एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसका फॉर्मेशन होता है. और दिस इज द सर्टोली सेल. ये सर्टोली सेल किसका फॉर्मेशन करती है? इनिविन हार्मोन का फॉर्मेशन करती है. ये क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, ये हम आगे की स्लाइड में देखेंगे. दिस इज द स्पर्मेटोसाइट 1 एंड दिस इज द स्पर्मेटी. ओके, testes. The testes are each surrounded by two protective coats. This is called the tunica. Testes जो है वो दो कवरिंग से कवर्ड रहता है. ओके, पहली है ट्यूनिका वेजाइनलिस. दिस इज द आउटर लेयर. दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ पेरिटोनियम. ये ट्यूनिका वेजाइनलिस आप यहाँ पर देख रहे हैं डायग्राम में. ये जो है पेरिटोनियम का ही एक्सटेंशन है, और इसके अंदर जो एक लेयर रहती है वो कहलाती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया. दैट इज द इनर लेयर एक्सटेंड बिटवीन ईच ऑफ द लोब्यूल. ये प्रत्येक लोब्यूल के बीच में एक्सटेंडेड रहती है. Sperm production in the testes live via the tubulus rectus. Tubulus rectus. ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो एंड पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? ट्यूबुलस रेक्टस. ओके, स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और ये कन्वे होता है यहाँ से कहाँ पर? ट्यूबुलस रेक्टस में. और ट्यूबुलस रेक्टस से फिर स्पर्म कहाँ जाता है? एक नेटवर्क होता है. ये नेटवर्क जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये नेटवर्क कहलाता है रेटी टेस्टिस. यहाँ पर स्पर्म ट्यूबुलस रेक्टस से होते हुए यहाँ पर पहुंचते हैं, और इसको हम बोलते हैं रेटी टेस्टिस. फ्रॉम हियर द स्पर्म आर कैरिड वाया डिफरेंट डक्ट टू द एपिडिडाइमिस. ये आप हिस्सा देख रहे हैं, ये है एपिडिडाइमिस. रेटी टेस्टिस से होते हुए सारे स्पर्म कहाँ पर आते हैं? एपिडिडाइमिस में. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टेस्टिस? टेस्टिस, जैसे कि मैंने बताया कि टेस्टिस का पहला फंक्शन जो होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है. ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब दैट मींस द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म. कैसे होता है हम आगे देखेंगे. और कहाँ पर होता है ये फॉर्मेशन? होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर.
और टेस्टिस का एक और फंक्शन है और वो है सिक्रेट द हार्मोन। तो कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है ये? पहला टेस्टोस्टेरोन by the interstitial cell of the lady, and second one is the inhibin by the Sertoli cells. The endocrine function of the testis, क्या क्या है फंक्शन टेस्टिस के एंडोक्राइन लेवल पे? दैट मीन्स हार्मोनल लेवल पे। तो ये सिक्रेट करता है मेनली एंड्रोजन, दैट इज द टेस्टोस्टेरोन, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोस्टेनोडियोन। फंक्शन क्या क्या है टेस्टोस्टेरोन के? तो मेंटेनेंस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस को मेंटेन करना, उसको बनाए रखना। सेकंड, स्टिमुलेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जेनाइटिलिया, जेनाइटिलिया के डेवलपमेंट का स्टिमुलेशन करना, उसकी ग्रोथ करना। थर्ड वन इज डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट करना। दैट मीन्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? तो प्यूबिक हेयर का फॉर्मेशन करना, उसके बाद फिर सीमन का फॉर्मेशन करना, उसके बाद फिर वॉइस में हेवीनेस लाना। दिस इज द बहुत सारे और है, तो दिस इज द वन ऑफ देम ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट वन इज मेंटेनेंस ऑफ लिबिडो। लिबिडो मीन्स जो सेक्सुअल अराउजल है उसको मेंटेन करना। इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म पे टेस्टोस्टेरोन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं? तो इंक्रीज एनाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, एनाबॉलिज्म this is the part of the metabolism. One is the catabolism and second one is the anabolism. Anabolism is the formation of the different type of the proteins and catabolism is the reduction or destruction process, which is the part of the metabolism. So anabolism of the different type of the protein, यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। causing growth of the bones, it help in the growth of the bones. थर्ड वन इज द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट का डिपोजिशन करना मेनली बोन में। एनहांसमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेड सेल, रेड सेल का फॉर्मेशन भी करता है टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट वन इज स्क्रोटम। व्हाट इज द स्क्रोटम? द लिटरली मीन्स इज द पाउच और सेक। ये एक तरीके का पाउच है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? टेस्टिस रहता है, और दिस इज द आउटर लेयर। इट इज द पाउच ऑफ स्किन, ये स्किन का बना होता है। दैट इज इनकम्प्लीटली डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट हाफ, दो हाफ में डिवाइडेड होता है, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ। ईच हाफ हाउस वन टेस्टिस, हर एक राइट साइड में राइट साइड का टेस्टिस प्रेजेंट रहता है, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड का टेस्टिस प्रेजेंट रहता है स्क्रोटम में। द अपीयरेंस ऑफ स्क्रोटम चेंजेस विद टेम्परेचर। एग्जांपल, cold or sexual arousal, it appears shorter and quite wrinkled because it is pulled closer to the body for warmth. Okay, एक्चुअली क्या होता है कि आखिर स्क्रोटम की जरूरत क्या पड़ी, स्क्रोटम का फॉर्मेशन क्यों हुआ या डेवलपमेंट क्यों हुआ? तो स्पर्म जो रहते हैं वो हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इसलिए टेस्टिस को बॉडी के बाहर रखना जरूरी हो गया विकास के दौरान या डेवलपमेंट के दौरान, इवोल्यूशन के दौरान। तो उसके लिए स्क्रोटम का फॉर्मेशन हो, टेस्टिस उस स्क्रोटम में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो स्क्रोटम लूज होते हैं, टेस्टिस बाहर आ जाते हैं, और जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो मसल्स में, स्क्रोटम की मसल्स में, टेस्टिस की मसल्स में, आउटर मसल में कॉन्ट्रेक्शन होता है और स्क्रोटम छोटे होते हैं और टेस्टिस एब्डोमेन की तरफ या पेल्विक रीजन की तरफ जाते हैं ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो बॉडी टेम्परेचर पे, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर पे इसको हम सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए स्क्रोटम का फॉर्मेशन हुआ। इसीलिए अपीयरेंस जो है स्क्रोटम का वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर कोल्ड होगा, ज्यादा ठंड रहेगी या सेक्सुअल अराउजल होगा तो इट अपीयर शॉर्टर एंड क्वाइट रिंकल्ड, शॉर्ट हो जाएंगे, एंड बिकॉज इट इज पुल्ड क्लोजर टू द बॉडी फॉर वार्मथ, गर्मी के लिए, गर्म होने के लिए वो टेस्टिस जो है, स्क्रोटम जो है वो बॉडी के पास में आ जाएंगे। सेकंड वन इज हीट, स्किन इज फ्लेसिड, लूज हो जाती है स्किन अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो, और टेस्टिस हैंग ओवर हो जाते हैं या
testes hang lower in the scrotum to keep them cool. टेस्टिस जो है वो नीचे की तरफ चले जाते हैं स्क्रोटम में बाहर की तरफ ताकि उनको ठंडा रखा जा सके. So this is the function of the mainly of the scrotum. The movement of the scrotum and testis help to maintain intrascrotal and hence testicular temperature constant of 93 degree Fahrenheit. आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो मसल्स है क्रीमेस्टर मसल और डार्टोस मसल, ये मेनली दो मसल्स है जो हेल्प करती है किसमें, स्क्रोटम को पेल्विक रीजन या बॉडी की तरफ ले जाने में या उसको लूज करने में. तो मूवमेंट ऑफ द स्क्रोटम इज अचीव्ड बाय द टू ग्रुप ऑफ द मसल्स. First one is the dartos muscle. You can see here, this is the dartos muscle, which are present in the beneath the skin, or you can say outer layer of the scrotum, which is a smooth muscle and causes shrinking of the scrotum. ये किसमें हेल्प करती है, shrinking of the scrotum में हेल्प करती है. Second one is the cremaster muscle. You can see here, this is the cremaster muscle, which is skeletal muscle. ये किस तरीके की मसल है, skeletal type of the muscle है, and it elevated the testis. It is attached to the internal oblique muscle of the trunk. Okay. अब यहाँ पर क्या हुआ, डार्टोस मसल इज ए स्मूथ मसल. इसका मतलब ये हुआ, ये जो स्मूथ मसल है, डार्टोस मसल है, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता है. स्मूथ मसल पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि मसल्स ऑफ द इसोफेगस हो गया, इंटरनल पार्ट बॉडी जो भी है, फॉर एग्जांपल स्टमक हो गया, उसके बाद फिर आपका इंटेस्टाइन हो गया, इनमें स्मूथ मसल प्रेजेंट रहती है, तो इन पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता है. तो डार्टोस मसल पे हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन क्रीमेस्टर मसल पे हमारा कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि ये स्केलेटल टाइप ऑफ द मसल है जो कि हमारी इच्छा पे डिपेंड करती है, जो कि वॉलेंट्री टाइप ऑफ मसल्स होती है.